Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to another favorites video. As you guys already know the concept of this video, in today's video I am going to share each and everything that I've been loving for the whole month of August. So this is an August favorites video. I really do have lot of shows and movies to share with you. This month was a whole crazy month for my TV addiction. So yes, in today's video I'm going to share everything, and without wasting much time, let's just dive right into the video. And also, before moving ahead, if you haven't already subscribed to my channel and if you are watching me for the very first time, then please do consider subscribing to my channel. It means a lot to me. Now, let's go. So, in no particular order, let me share my skincare or hair care or makeup products with you all. So, the first thing that I can see over here is this Livon serum, and इट इज़ अ नेसेसिटी, लाइक इट इज़ एन एसेंशियल थिंग फॉर मी. और ये आज का नहीं है, ये कई सालों से मैं यूज़ करती आ रही हूँ. पता नहीं क्यों 1 या 2 महीने से मैंने सीरम लगाना बंद कर दिया था. एंड नाउ दैट आई एम लुकिंग बैक एंड थिंकिंग कि मेरे हेयर्स की क्वालिटी इतनी डिग्रेड हो रही थी, तो उसकी एक रीज़न ये भी हो सकता है दैट आई वॉज नॉट अप्लाइंग सीरम ऑन माई हेयर रेगुलरली. कभी कभार मैं यूज भी कर लेती थी पर रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज करती थी. एंड नाउ दैट आई स्टार्टेड यूजिंग इट रेगुलरली, I can feel the softness, I can feel the shiny texture of my hair, and I'm so happy with that. Now let's move on to makeup favorites, and the first thing that I have is this foundation. It is from Kiko Milano. It is their Kiko Milano full coverage 2-in-1 foundation and concealer, and oh my god, I don't know what to speak about this product. This is such a beautiful foundation. This is a pure beauty. It is an amazing product. Of course, it is a high-end product. ये budget friendly नहीं है. This costed me around like what 2000 or something like that, 2000 2500 something like that. But it is worth single penny. इसको मैंने रक्षाबंधन पे लगाया था और I remember ये almost पूरा दिन मेरे स्किन पे इंटैक्ट था. It just did not move from its place, which is amazing thing. और जो टेक्सचर भी देता है, it is like very flawless, natural है फिर भी flawless लगता है. It is just amazing. ये मैंने जब रक्षाबंधन पे लगाया था, I applied it I guess around 10 o'clock in the morning and I was wearing it till 9 or 10 in the night, and oh my god, ये बिल्कुल भी इसका फिनिशिंग चेंज नहीं हुआ था. I really love this foundation. It is a medium to high coverage product. आप इसको आराम से build up कर सकते हो. This is an amazing product to apply on such days जहाँ पे आपको foundation पूरा दिन चलाना है, आपको कोई टच अप नहीं करना है और आप नहीं चाहते कि आपका फाउंडेशन फेस पे से बिल्कुल भी मूव हो, या फिर कभी कभार कोई फाउंडेशन ऐसा होता है कि बहुत गर्मी होती है, मेल्ट हो जाता है. I have not experienced it with this product. So yes, this is absolute favorite of them. Okay, now next 2 products are a hidden gem for me. The first one are eyelashes. These are the eyelashes from Mr. DIY जो मैंने कोई एक तो हॉल में दिखाया था आपको. It was a Mr. DIY haul. I guess the first one that I did. Of course, I'll go ahead and link it in description box as well as in I button. It was a packet of 5 eyelashes, and if you can see, I don't know if you can make it out or not. As you can see, यहाँ पे एक पैर मिसिंग है, तो वो मैंने अभी अप्लाई की हुई है. और ये पूरे मंथ में मैंने ये eyelashes बहुत ही यूज किया, एंड दे आर reusable guys. मतलब ये एक पैर ही मैं अभी तक चला रही हूँ, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने 4-5 टाइम्स मैंने यूज कर लिया है. I am frequently using it to create eye looks for my Instagram reels. And right now also you are seeing one of the look that I have created for Instagram. Of course they are fake lashes, तो ऐसा तो आपको दिखना ही है कि ये fake eyelashes लगाई हुई है, और कोई भी eye looks को बहुत ही अच्छे से enhance कर देते हैं fake eyelashes. So yes, these are just amazing. It also included the glue for the eyelashes, but it did not work. Like glue was such a flop, and I believe ऐसा सब में होता है कि उसके साथ जो eyelash glue आता है वो बहुत ही बेकार होता है. So to complement and to apply these eyelashes, I have eyelash glue as well. So this is eyelash glue, and it is from the Fashion Factory eyelash adhesive clear white, and this is an eyelash glue जो मैंने
कोई तो एक लोकल स्टोर से लिया था. आई गेस इट कॉस्टेड मी अराउंड 50 या 60 रुपीज एंड दिस इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल. आई फील मुझे मिस क्लेयर का या पैक का आईलैश ग्लू लेने की अभी जरूरत नहीं है जब तक ये मेरे साथ अच्छे से चलता है. एंड ऑफ कोर्स ये भी मैंने ऐसे ट्रायल बेसिस पे ही लिया था कि मैं सीख पाऊँ कि आईलैश कैसे लगाते हैं. दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई बॉट आईलैशेस फॉर माई सेल्फ एंड दिस वाज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट आई गॉट आईलैश ग्लू सेपरेटली. तो मैं मिस क्लेयर या पैक आईलैशेस या आई ग्लूज में नहीं इन्वेस्ट करना चाहती थी. मैं चाहती थी कि मैं ये 5 आईलैश से एक बार सीख लूं और अच्छे से मैं सेट हो जाऊं. उसके बाद मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ अच्छे से हाई एंड आईलैश में या आईलैश ग्लू में, वॉट एवर यू वॉन्ट. बट फॉर नाउ दिस बोथ आर वर्किंग वेरी वेल फॉर मी. एंड ऑल्सो गाइज आई हैव अपलोडेड, नॉट आई हैव बट आई विल बी अपलोडिंग tutorial of this eye look on my Instagram. So if you are interested in such videos of tutorial or makeup reels and sort of things, then please do follow me over there. As now time for some random favorites, and it is a random thing, okay guys. It is an organizer kind of thing जो मैंने Mr. DIY में से लिया था after shooting the video of Mr. DIY hauls. So I thought this is a perfect time so that I can share my new purchase of Mr. DIY as well as this is my favorite thing. Okay, so this is an organizer. It looks something like this and इसका फ्रंट ऐसा है जिसपे होम एंड गार्डन लिखा था. बट ऑफ कोर्स अगर आपको कोई और चीज में भी यूज करना है आप कर सकते हो. आई एम यूजिंग इट एज माई मेकअप ऑर्गेनाइजर एंड एज यू कैन सी, आई डोंट नो मैं ऐसे पूरा करूंगी कुछ गिर ना जाए, बट आई विल बी कीपिंग द क्लोजअप क्लिप समवेयर ओवर हियर. सो ये मैंने लिए हैं ऐसे 3 बास्केट. यस, वन फॉर माई बेस प्रोडक्ट्स लाइक जो ऐसे पैलेट्स होते हैं उसके लिए मैंने एक रखा है, वन फॉर माई लिपस्टिक्स एंड वन फॉर माई आई प्रोडक्ट्स. आई एम नॉट गोइंग टू शो एवरीथिंग बट येस दिस इज द ऑर्गेनाइजर. ये एक बॉक्स मुझे 100 के आसपास पड़ा था और ऐसे मैंने 3 बॉक्स लिए हैं फॉर माई मेकअप ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर प्रीटी गुड. लाइक यू कैन स्टैक देम अप एज वेल. अगर आपको 3 एक साथ रखने हैं आप रख सकते हो और ज्यादातर मैं ऐसे ही रखना पसंद करती हूँ ऑन माई ड्रेसिंग टेबल और वेयर एवर आई एम शूटिंग. सो यस दिस आर द बेस्ट ऑर्गेनाइजर्स आई फील फॉर माई मेकअप क्योंकि ऐसे में आपको पूरे पैलेट्स दिखते भी हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे है एंड यू कैन जस्ट लिफ्ट देम अप. लाइक आपको अगर बीच में से भी कुछ निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हो और आप आराम से ऐसे बीच में उसको प्लेस भी कर सकते हो जहाँ पे उसकी प्लेस है. एंड इट वॉज सच अ रैंडम फेवरेट बट येस आई थॉट दैट दिस नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट. Let's move on to the food favorites and I have 2 food favorites for the month. Both are sweets. Of course it was रक्षाबंधन. मैंने घर पे 2 स्वीट्स बनाई थी. सबको बहुत पसंद आई थी और मुझे पर्सनली केक वाली बहुत पसंद आई थी, बहुत ही पसंद आई थी. And the first one was this recipe that I made. मैंने जो भी वीडियो देख के बनाया था मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी. It tasted like heaven. I loved it. It was this cake जिसको आपको पीस करके चॉकलेट में डीप करके फ्रोजन करना था एंड ओ माय गॉड आई लव्ड इट. इनफैक्ट एवरीवन लव्ड इट. सारे भाइयों को बहुत पसंद आया विच वाज इम्पोर्टेंट. आई गेस हमने भाई को पसंद आया इसीलिए बनाया था और मेरे भाई को बहुत ही पसंद आया था वो. सो यस दैट वाज द फर्स्ट फूड आइटम फेवरेट एंड द सेकेंड स्वीट दैट वी मेड वाज घारी एंड इट वाज लाइक वेरी मच डिफिकल्ट टास्क. मतलब ऐसा कुछ नहीं था बट वो बहुत ही मेहनत वाला था बट एंड रिजल्ट वाज आल्सो अमेजिंग. इट वाज अ कंबाइंड मेहनत ऑफ माय एंड माय मॉम बोथ. आई गेस कि वो अभी तक है हमारे घर पे क्योंकि हमने दूसरी बार भी बनाया था. सो इफ इट इज देयर आई विल बी क्लिकिंग पिक्चर एंड आई विल बी अपलोडिंग ओवर हियर. सो आप अपने आप देख सकते हो. इट लुक्स सो टेम्पटिंग एंड इट वाज अ घारी. इफ यू नो और इफ यू डोंट नो, सूरत की फेमस स्वीट है ये. मेरे डैड को बहुत ही पसंद है और मेरे डैड को तो बहुत ही टेस्टी यम्मी लगी थी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो यस मैं उसका फोटो डाल दूंगी और उसकी भी लिंक अगर मुझे मिलेगी कि मैंने कौन सी वीडियो से बनाई थी तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी. यू गाइज कैन गो हेड एंड ट्राई बोथ ऑफ दिस रेसिपीज. आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल बी एबल टू मेक इट एंड it will taste like heaven. Yummiest sweets ever. If you are a chocolate lover you can go for the cake one and if you are
like a desi sweet lover, then you can go for Ghari one. Both of them were amazing, and of course not to mention both are tried and tested recipes, so you can blindly trust on that. Okay, so time for some fashion favorites, and this one particular top from the haul जो मैंने अपलोड किया था लास्ट टाइम, उसमें से एक ग्रीन कलर का टॉप था. इट इज माई फेवरेट टॉप. मैंने वो रक्षाबंधन पे पहना था, बहुत ही अच्छा लग रहा था. मैं उसका क्लिप यहाँ पे डाल दूंगी. अगर आपने हॉल देखा होगा तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि मैं कौन से टॉप की बात कर रही हूँ. बट अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाओ और देखो. इट इज अ गुड हॉल अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट. उसमें मैंने बहुत सारे टी शर्ट्स लिए हैं, टॉप्स लिए हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक वेस्ट साइड, जूडियो, FBB एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. मुझे ये टॉप बहुत ही पसंद आया था और मैंने वो वीडियो में भी मेंशन किया था दैट आई लव्ड दैट टॉप एंड इट इज अ ब्यूटीफुल टॉप. इट लुक्स सो प्रिटी ऑन मी. मैंने उसको रक्षाबंधन के दिन पहना था. यस, इट हैज टू बी माय फैशन फेवरेट्स ऑफ द मंथ. So let's move on to the final segment of my favorites video, and it is movies/shows. And look at this list. मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि कौन से शोज और मूवीज मैंने देखी है ये मंथ में. So let's start with the first show, and of course you guys already know it, and I am so happy. मेरा TVD फिनिश हो गया था ये मंथ में. It was like फर्स्ट और सेकंड डे ऑफ मंथ जब मेरा TVD फिनिश हो गया था, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाई इज इट फिनिशिंग. मतलब ऑफ कोर्स मुझे उसको फिनिश करना था, बट द एंड क्लाइमैक्स वाज लाइक ओ माय गॉड, आई रियली डू नॉट वांट दिस क्लाइमैक्स. जो भी TVD फैन है उनको तो पता ही होगा दैट एट द एंड स्टेफन डाइड. इट वाज सच अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी. मतलब मैं बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अटैच हो जाती हूँ कोई भी सीरीज या शोज में. आई लव्ड द सीजन टू द कोर. ऐसी बहुत सारी सीरीज होती है जिसके फर्स्ट सीजन बहुत ही अच्छे होते हैं, सेकंड सीजन से थोड़ा डिग्रेड होता जाता है, बहुत इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहती है सीरीज. बट that was not the case with this season. The Vampire Diary was improving day by day, season by season. Now the second series that I have started this month is the spin-off of The Vampire Diaries, the originals. और of course ये भी थोड़ी सी लॉन्ग सीरीज है, नॉट 8 सीजन, आई गेस 5 सीजन है उसमें, 22 एपिसोड्स. अगेन मैं सिर्फ ओरिजिनल्स नहीं देखूंगी, उसके साथ साथ मैं बहुत सारी सीरीज और मूवीज कंटिन्यू करूंगी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ ओरिजिनल्स देखूं. बट येस, द ओरिजिनल्स आई हैव स्टार्टेड. इट इज अ स्पिन ऑफ द वैम्पायर डायरीज. आई हैव स्टार्टेड फ्रेंड्स, एंड ओ माय गॉड, मुझे इतने सारे लोगों ने बता करके ये कर दिया था कि फ्रेंड्स इज अ मस्ट वॉच सीरीज, फ्रेंड्स इज अ मस्ट वॉच सीरीज. एंड ऑफ कोर्स मैंने भी ये बहुत ही लंबी और बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ सीरीज कंप्लीट की थी और ऐसी थी, तो मुझे भी थोड़ी सी लाइट सीरीज में मूव ऑन करना था. अब 2-4 एपिसोड्स देखो, एंजॉय करो, ऐसी कोई सीरीज मुझे स्टार्ट करनी थी. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रेंड्स. एंड आई गेस मैंने 3 एपिसोड्स देखे हैं. जब भी मुझे ऐसे थोड़ा टाइम मिलता है, 20-25 मिनट का, जिसमें मैं कोई भी सीरीज नहीं देख सकती, मतलब एक पूरा एपिसोड जिसका मेरा और कोई सीरीज का कंप्लीट नहीं हो सकता, उसमें बैठ के मैं फ्रेंड्स देखती थी. तो मेरे 3 या 4 एपिसोड्स फिनिश हुए हैं. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे अभी तक इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा है, बट सब मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, थोड़ा सीजन देखो तो आपको पसंद आएगा. हाँ, थोड़ा सा फनी लग रहा है अभी स्टार्टिंग में, बट यस, लेट्स सी कि मुझे आगे जाते जाते कैसा लगता है. Okay, so the next show that I watched was Feels Like Ishq. Yes, it is a Feels Like Ishq. और ये एक शॉर्ट स्टोरीज का कॉम्बिनेशन है, पाइलअप है. आई गेस 6 एपिसोड्स हैं जिसमें शॉर्ट स्टोरीज का पाइलअप किया हुआ है. एंड दे आर नॉट रेलिवेंट विथ ईच अदर एज वेल. ऐसा कोई रेलिवेंस भी नहीं है. इट इज अ लाइट फील सीरीज आई वुड से. आपको 15-20 मिनट में आपको अगर मूड थोड़ा सा अच्छा करना हो, फील गुड वाला सीरीज देखना हो, तो ये सीरीज है जो आप देख सकते हो. इट इज अ गुड सीरीज जिसमें एक में रोहित सरफ है, एक में अनम सी है. और इसी की वजह से मैंने देखा भी था क्योंकि मैंने अनम सी की स्टोरी देखी थी. एज यू गाइस ऑलरेडी नो, आई हैव बीन फॉलोइंग हर सिंस सो लॉन्ग. ही की कोई स्टोरी देखी थी कि उसके एक एपिसोड में अनम सी है. सो दैट वाज द फर्स्ट episode that I watched, and it was purely to see Anam C, and then I watched all the other episodes.
एंड इट वॉज अ गुड शो. आप देख सकते हो, आप आई गेस आराम से 3-4 घंटे में फिनिश कर दोगे. द लास्ट सीरीज दैट आई वॉच्ड वाज सनफ्लावर एंड आई काइंड ऑफ डिड नॉट लाइक इट. टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतनी पसंद नहीं आई है वो सीरीज. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया था और बोला था बहुत ही अच्छी सीरीज है, बट आई एम काइंड ऑफ लाइक 50-50. आई एम नॉट वेरी मच हैप्पी विद द सीरीज. आई एम नॉट वेरी मच लाइक डिड नॉट लाइक इट, ऐसा भी नहीं है, बट इट वॉज एन ओके सीरीज. मुझे, आपको ऐसा होता है ना कि आपको अगर कोई बोल दे सुबह में कि आपको आज पाव भाजी खाने मिलेगी, बट फिर आपको पिज्जा मिले. ऑफकोर्स यू लाइक पिज्जा एज वेल, बट यू हैव दैट माइंड सेट कि आज मुझे पाव भाजी खाने मिलेगी. ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये मर्डर मिस्ट्री वाली सीरीज है, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट ही एपिसोड में उसमें मर्डर दिखाया था. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर काइंड ऑफ सीरीज, और वो निकली कॉमेडी सीरीज. आई रियली लव और एंजॉय कॉमेडी सीरीज एज वेल, बट that was not something that I was expecting with that series. So that was the reason I was a little bit disappointed with the series. But if you want to see the series as a comedy series, तो आपको बहुत ही पसंद आएगी. सुनील ग्रोवर की कॉमेडी उसमें अच्छी खासी दी हुई है, बट पर्सनली मैं उसको मर्डर मिस्ट्री काइंड ऑफ सीरीज में एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि वो नहीं था. सो येस, इट वॉज अ 50-50 सीरीज फॉर मी. Okay, so coming to movies, I first watched Dial 100 on ZEE5 and it was amazing. It is a thriller drama movie and the acting of Manoj Bajpayee, oh my god, I loved it. It was just amazing. मुझे ऐसी murderous, mysterious वाली, thriller वाली movies बहुत ही पसंद आती है. सीरीज हो चाहे मूवीज हो, मुझे बहुत ही पसंद आते हैं ऐसे murder mysteries वाले movies. So yes, Dial 100 is one of them. Okay, so the next movie is Silence Can You Hear It movie. Again, it is a movie of Manoj Bajpayee. It is an amazing story. It is a thriller murder mystery story. If you are interested in this genre, then you would definitely love it. So the next movie is London Confidential and it is a movie of Moni Roy. It is a good movie. अगर आपको ऐसे spy thriller वाली movies देखनी पसंद है तो आपको ये जरूर पसंद आएगी. At the end climax भी अच्छा दिया है. ऐसा नहीं है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स दे दिया या फिर कोई रेलेवेंस के बिना का क्लाइमैक्स दे दिया. ऐसा बहुत सारे मूवीज में होता है जो बहुत ही इररेलेवेंट क्लाइमैक्स देके छोड़ देते हैं. इट इज नॉट सच अ मूवी, इट इज अ गुड मूवी. ओके, वी आर ऑन द लास्ट मूवी ऑफ द मंथ एंड इट इज ऑपरेशन परिंदे. बहुत ही शॉर्ट मूवी है ये वाली बहुत ही शॉर्ट मूवी थी. आई गेस 1 hour और 1.5 hour, दैट्स इट. इतनी शॉर्ट और अच्छी मूवी थी, टू द पॉइंट मूवी थी. ऐसा बिल्कुल भी बकवास टाइम पास नहीं किया है बिल्कुल भी मूवी में, which I really loved. So yes, that's it for today's video. I really hope you enjoyed watching this video, and if you did, then please do not forget to give it a big thumbs up, share it with all of your friends and family, and also do not forget to subscribe to my channel. It really means a lot to me, guys. It really means a lot. Also, please hit that bell notification to get notified every time I upload a new video so that you don't miss out on any video of mine. I will see you in my next video. Till then, bye bye.